Hello everyone, good morning. Welcome you back in the topic quadrilateral. Okay, I know that this is the last video of this particular topic, so I have included all the solved questions in this video. At the same time, the HOTS which we did not solve during the exercise, that also is been covered in this particular video. So pay attention, start solving with me. So what the question is, show that this is a solved question from the textbook. And let me tell you, whenever it comes to geometry or the topics which are geometrical, extremely important. Solved questions are extremely important. Show that the diagonals of rhombus are perpendicular to each other. We have done this in many questions. Diagonals of rhombus are perpendicular to each other. We have done this in the solving exercise as well. They bisect each other and they are perpendicular to each other. So very clear. Let us see that diagonals of rhombus are bisecting each other. The first thing we know that diagonals bisect each other as it is a parallelogram. So we can write it as rhombus is a parallelogram. Always remember all these are nothing but parallelogram only. Therefore, AC bisect BD. So can we prove the triangle AOB and triangle AOD congruent? Yes, it's possible. I won't be writing that how it is possible, but yes, it is possible by SSS test. Triangle AOB congruent to triangle AOD by SSS test. तो आप खुद से देखो and prove कर दो. ठीक है? तो now we get these two angles equal. So angle AOB plus is equals to angle AOD. Reason क्या होगा इसका CPCT. And then that will be equal to x. I just consider. So what do I know that x plus x will be equal to 180 degree linear pair. 2x will be equal to 180. We have done this many times, isn't it? X will be equal to 90 and that's it. Done. Work is done. चलो come on फटाफट आगे बढ़ते हैं. Triangle is an isosceles triangle. Okay, there is one triangle. ये थोड़ा सा weird question है. One should understand it. Show that missing है. तो I'll be writing telling you. ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC. AD bisect angle PAC. Diagram is given here, so I am drawing it. AD bisect angle PAC. तो ये bisector है. This is AD, which is bisecting it. You have to consider CD जो है, it is parallel to AB. That's it, and you have to show that quadrilateral ABCD is a parallelogram. Very simple, very simple question, very interesting. So one should know easily कि triangles are triangles के sides are equal, then we have its opposite angles are equal. So here if AB equal to AC gives me angle B is equals to angle C. ये तो clear है. Let's call it as X. Okay. Next, it's clearly written here that AD is a bisector, right? It is a bisector. So isn't it those angles are also equal? So angle PAD is equals to angle CAD is equals to y. Equal है. Angle bisector you can write. यहाँ पे आप angle opposite equal side you can write. ठीक है. Now don't you think angle PAC will be equal to angle B plus angle C? Reason exterior angle property. देख लो, angle PAC, the complete angle is equals to this angle plus this angle, है ना, exterior angle. You remember that? So PAC is 2y is equals to x plus x gives me 2y is equals to 2x gives me y is equals to x. ये हो गया आपका काम. Y is equals to x. मतलब ये y है, ये दोनों y है, ये दोनों x है. तो y is equals to x का मतलब क्या बनता है? तो in this case angle DAC will be equal to angle ACB. ओके, बिकॉज x इज इक्वल टू वाई. x ये है एंड ये y है. तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस गिव्स मी AD पैरेलल टू BC. क्यों? कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल थ्योरम. देयरफॉर वी हैव क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram.
ऐसे क्यों पैरेललोग्राम हो जाएगा? कम ऑन टेल मी। देखो ये ऑलरेडी पैरेलल गिवन है और ये हमने अभी प्रूव कर दिया कि पैरेलल है, दैट्स इट, इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। देखो यहाँ पे व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज नथिंग बट एक्सटीरियर एंगल यू हैव टू यूज, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड द सम। तो एक्सटीरियर एंगल इफ यू यूज, योर सम इज डन, right? Next one, show that the bisector of angles of parallelogram form a rectangle. Extremely important, mark it as very very important sum. Show that the angle bisectors of parallelogram form a rectangle. देख लो, if I have a parallelogram, please remember for this question draw a parallelogram bit longer, otherwise you will not get any quadrilateral inside it. Okay, bit longer. So if I take an angle bisector of this, angle bisector of this, angle bisector of this, and angle bisector of this. Okay, I hope you got it, how it form a rectangle in between. So here is ABCD and this is PQRS. How can I prove it is a rectangle? Just make all angles 90. That's it. ये समझ में आ गया? तो चलो let's understand it. तो angle A is equals to angle C is equals to 2x and angle B is equals to angle D is equals to 2y. ऐसे क्यों? Opposite angles of parallelogram. You remember that कि opposite angles of parallelogram are always equal. और 2x क्यों लिया? Because it is a bisector, so that what I can do is here x I can write x because they're equal. Y I can write as y. This was the reason behind saying that is equal to 2x and this is equals to 2y. Okay. So आगे बढ़ते हैं. Let's understand it. I need to find angle P. Okay. So I know that angle A plus angle B is equals to 180 degree. Adjacent angles of parallelogram you can write, or interior angles you can write. So 2x plus 2y is equals to 180, gives me, after taking 2 common, x plus y is equals to 180, and that is x plus y is equals to 90 degree. That's it. So very simple. Let's call this as equation number 1. अब यहाँ पर रुक जाता है. Now let's talk about angle P. देखो ये angle P and ये angle P both are same thing. A vertical opposite angle होता है. तो if I find this one, then it's very clear I'll get the angle P which is inside. So in triangle ABP, is it x plus y plus angle P will be equal to 180 angles of triangle? X plus y is 90 already given, so angle P will be equal to 90. ये हो गया आपका first point. As angle P is 90, similarly you can write that angle R also will be 90. Right? Angle R, ये angle R भी 90 हो जाएगा. तो दो angle तो 90 हो गए. I'm left with angle Q and angle S. देखो, let's talk about angle Q. Is angle Q present in the triangle? Please verify the triangle. Is this triangle the angle Q is available? Check कर लो. So if you have that angle in that particular triangle BQC, isn't it? In triangle BQC, you can use the same thing, x plus y plus angle Q is equals to 180. What is x plus y? From equation number 1, 90. So isn't it this implies angle Q will be equal to 90 as well? That's it. Similarly, we have angle S is 90. You can check the triangle, which triangle you can use, SRD, ASD, sorry. ASD you can use to prove angle S is 90. So do we have all angles 90? Then done. You have quadrilateral PQRS as a rectangle. Clear? Got the point? Hope you are clear with it. Next one. Show that the angle bisector of angles of parallelogram. तो ये क्या था? अच्छा, सेम क्वेश्चन है. ओके. तो ये क्वेश्चन नहीं है. Question I'll change it. Question is in this manner. I'll just clear everything. Angle bisector of interior angles forms a rectangle. ये क्वेश्चन है. देखो, if I take a bisector of this one and this one, isn't it these are interior angles? If I take a bisector of this and this, isn't it these are interior angles, right? So this is nothing but a rectangle which is formed here inside. It is nothing but a rectangle. ये जो है ये rectangle है जो येलो कलर से, ये हमें प्रूव करना है. Let's name it. Would be better. ABCD have to prove that it is a rectangle.
here is P, here is Q, here is R, here is S. That's it. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर भी वही चीज़ करनी है हमें जो पिछले क्वेश्चन में किया था. जैसे पहले 2x एंड 2y कंसिडर किया था, हियर ऑल्सो विल डू द सेम थिंग. बट कौन से मैं 2x एंड 2y कंसिडर कर रहा हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है. देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई विल कंसिडर एंगल, ये दो पैरेलल लाइन्स हैं, पी क्यू एंड आर एस पैरेलल. ठीक है, तो एंगल पी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी एस इज इक्वल्स टू 2x. देख लो, पी ए सी एस अल्टरनेट एंगल. Similarly, angle QAC is equals to angle RCA, that is equals to 2y. Same reason, alternate angle. तो इसका मतलब क्या बनता है, देखो, this will be x, this will be x, here is x, here is x, y, 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 y. हो गया काम. कैसे देखते हैं. Is it this complete angle gives you 180? So 2x plus 2y will be equal to 180 डिग्री. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, x plus y will be equal to 90. तो क्या होगा x plus y in that way? BCD होगा, एंगल BCD will be 90. तो एक एंगल 90 हो गया. सिमिलरली एंगल BAD भी 90 होगा. क्या हो जाएगा, 90. देखो कितना ईजी हो गया क्वेश्चन, बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन. नेक्स्ट वन. तो दो एंगल 90 हो गए, हमें रेक्टेंगल प्रूव करना था और दो एंगल, तो बचे हुए एंगल को भी हम लोग क्या प्रूव करेंगे, 90 मतलब बी. ठीक है, तो एंगल ए बी सी देखते हैं, सॉरी ट्रायंगल ए बी सी. सो डू वी हैव एंगल बी प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. एक्स प्लस वाई कितना आ गया मेरा, ये देखो, एक्स प्लस वाई 90 है, तो 90 पुट किया तो एंगल बी विल बी इक्वल टू 90 हो गया. सिमिलरली एंगल डी ऑल्सो कैन बी प्रूवन 90 डिग्री. तो डू वी हैव ऑल एंगल्स 90, देखो. So what do we think? ABCD is a rectangle. That's it. That's it. वही चीज़, सेम थिंग. दोनों भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. प्लीज़ 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 मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट. दोनों क्वेश्चंस, ये और ये दोनों रेक्टेंगल ही एंड सेम कॉन्सेप्ट है, प्रूव करना है सेम कॉन्सेप्ट से. तो कम ऑन, यू कैन डू इट, आई एम श्योर. नेक्स्ट वन, ये हमने किया भी है क्वेश्चन को, 2-3 बार किया हुआ है. तो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग. क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, समझ में आ गया. जो बड़ा वाला है वो पैरेललोग्राम है. P and Q आर द मिड पॉइंट्स. ये मिड पॉइंट है. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ओके, एंड देन यू हैव टू प्रूव दीज आर ऑल पैरेललोग्राम्स. ठीक है, तो पहले APCQ देखते हैं. APCQ. ओके, तो यू कैन विजुअलाइज इट प्रॉपरली, इजंट इट. APCQ. तो इफ APCQ यू एक्सपेक्ट मी टू प्रूव दैट देयर इट इज़ अ पैरेललोग्राम, तो सबसे पहले QC एंड AP के बारे में सोचते हैं, है ना. तो देखो, DC इज पैरेलल टू AB, साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम. नहीं क्या, देखो, क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो उसका पार्ट भी पैरेलल होता है. तो QC विल बी पैरेलल टू AP. ये तो क्लियर सी बात है, करेक्ट. बट ये हो गया 1. एंड DC इज इक्वल टू AB. DC जो है वो AB से इक्वल है क्योंकि साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है. क्लियर है. तो हाफ ऑफ DC ऑल्सो विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AB. क्यों, इससे हाफ भी इक्वल होता है, यूक्लिड ज्योमेट्री याद आया. तो इसका मतलब QC विल बी इक्वल टू AP. देखो, ये हो गया दूसरा इक्वेशन. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इन अ क्वाड्रिलेटरल सेम पेयर ऑफ ऑपोजिट इज पैरेलल एंड सेम इज इक्वल. ये कॉन्सेप्ट में यूज कर रहा हूँ टू प्रूव इट इज अ पैरेललोग्राम. तो इजंट इट, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल QCPA बिकम्स अ पैरेललोग्राम. Similarly, can you prove the other one is a parallelogram? This one is a parallelogram. Same way. कुछ भी चेंज नहीं है, बस थोड़े से नेम्स चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं. Can we prove? तो I'll just write here. Similarly, we can prove that quadrilateral DQBP is a parallelogram. देखो कितना easy है, कुछ नहीं है, सेम थिंग है. Opposite side should made equal and parallel. That's it, done. ठीक है, दोनों पैरेललोग्राम हो गए. अभी थिंक करो, थिंक अबाउट इट. इफ दिस टू आर पैरेललोग्राम, इसके अपोजिट साइड तो पैरेलल होते ही है, राइट. तो इजंट इट इन दिस केस ये दो साइड्स पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि दीज आर द
अपोजिट साइड्स ऑफ सेकेंड पैरेललोग्राम, एंड ये दो पैरेलल हो जाएंगे बिकॉज दिस आर द अपोजिट साइड्स ऑफ द फर्स्ट पैरेललोग्राम. बराबर है क्या, देख लो. सो बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो आपका जो पी एस क्यू आर है वो भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा. तो हियर क्यू आर पैरेलल टू एस पी and QS parallel to PR. Therefore, quadrilateral PSQR is a parallelogram. That's it. देखो कितना इंटरेस्टिंग है एंड ईजी है, नहीं है ना ईजी. सो वेरी सिंपल, सो वेरी सिंपल. चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन देन. ओके, ये आपको बस प्रूव करना है, मतलब ऑलमोस्ट यही है वे, बस आपको रीजंस लिखने हैं, जो सिमिलरली लिखा है उसको फिर से करना है वर्कआउट. ओके, नेक्स्ट वन. एल एम एन आर थ्री पैरेलल लाइंस. सॉल्व एग्जाम्पल है, ये तीनों पैरेलल है एक दूसरे के. पी एंड क्यू आर ट्रांसवर्सल. ओके फाइन, हियर इज पी, हियर इज क्यू. ओके, दोज द कट ऑफ द इंटरसेप्ट. ये इंटरसेप्ट है. ओके, okay, n cuts the equal intercept at AB and BC is given that it is equal. Okay, so you are given that तीनों पैरेलल है. यू आर गिवन AB इज इक्वल्स टू BC, ये गिवन है. आपको प्रूव करना है क्या कि DE, प्रूव दैट. टू प्रूव क्या है, टू प्रूव DE इज इक्वल्स टू EF है. देखो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है. चलो देखते हैं. ओके, प्रूफ स्टार्ट करते हैं. दिखने के लिए क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है, मुझे लगा क्या है क्वेश्चन, लेकिन है कुछ भी नहीं. देखो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इन ट्राइंगल. आई एम टॉकिंग अबाउट ACF, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट थ्योरम का क्वेश्चन है तो क्लियर सी बात है. तो मिड पॉइंट थ्योरम इज ऑलवेज इन ट्राइंगल, तो इसलिए मैंने ट्राइंगल लिया. ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, बी जी इज पैरेलल टू, देख लो बी जी इज पैरेलल टू सी एफ, बी जी इज पैरेलल टू सी एफ. ठीक है, मतलब बी इज मिड पॉइंट, बी जी इज पैरेलल टू सी एफ. तो व्हाट अबाउट जी, will be midpoint, therefore G is midpoint. Now in triangle ADF, is G is a midpoint, and GE will be parallel to AD. वही चीज उल्टा करके देखना है. ओके, therefore E is midpoint. क्यों है ये, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. दोनों को रीजन क्या आएगा, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. इजी मिड पॉइंट तो हो गया, मतलब वही प्रूफ हो गया. दैट्स इट. सो वेरी सिंपल है ना, कितना सिंपल है. देखो 2 बार बस कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया एंड द क्वेश्चन आंसर इज डन. दैट्स इट. चलो अभी लास्ट क्वेश्चन HOTS ऑफ दिस टॉपिक. पर्पजली आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन एज लास्ट, बिट कंफ्यूजिंग है इसलिए. प्रूव दैट द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस फॉर्म्स रेक्टेंगल. तो मेरे पास एक रोम्बस है, उसके मिड पॉइंट अगर मैंने ज्वाइन कर दिए, ये मिड पॉइंट है, तो ये क्या आना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए. तो आई हैव ABCD एज अ रोम्बस एंड PQRS एज अ रेक्टेंगल विच आई हैव टू प्रूव बेसिकली. ओके, तो कंस्ट्रक्शन कुछ ज़रूरी है. पहला वाला कंस्ट्रक्शन है कि डायगोनल्स को ज्वाइन कर दो. दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन करने की ज़रूरत होती है बेसिकली. तो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग. आपको ये बात तो याद होगी कि टू प्रूव गिवन क्वाड्रिलेटरल एज ए रेक्टेंगल 2 वेज है. वन इज प्रूविंग ऑल एंगल्स 90. दैट्स इट, क्वाड्रिलेटरल इज डन विथ इट्स रेक्टेंगल. Second way is prove that it is a parallelogram and one angle is 90. In a parallelogram, if one angle is 90, it is also called as a rectangle. It's finished. So I'm going to use second way in this method. I'm going to prove first of all it is a parallelogram. Let's start working. PQRS are the midpoints. As all sides are equal, PQRS is a midpoint. तो चलो देखते हैं करना क्या है. तो in triangle ABC, do we have P and Q are midpoints? तो
what you can say about PQ and AC? Is PQ parallel to AC? Is PQ half of AC? Midpoint theorem, right? Similarly, we have SR parallel to AC and SR is equals to half of AC. तो what these two things can give me? ये हमने किया था इससे पहले भी, याद आया? These two things give me PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR. So these two things will tell us, therefore, quadrilateral PQRS is a parallelogram. That's it. हो गया. लेकिन हाँ, पैरेललोग्राम का एक एंगल हमें 90 तो करना पड़ेगा, है ना? वो अगर मैंने कर दिया तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल. तो 90 के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं. सबसे पहले हम लोग 90 के लिए क्या करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. PQRS इज अ पैरेललोग्राम, वो तो क्लियर हो गया. ये एंगल 90 होता है, पता है ना आपको? AC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD. रोम्बस में ये हमेशा होता है. तो एज PS पैरेलल टू BD, ये एंगल तो 90 हो जाएगा. आई मीन टू से यहाँ पे अगर मैंने कुछ T पॉइंट लिया तो एंगल ATP इज इक्वल्स टू एंगल AOB. ये क्यों लिखना बंद हो गया? हाँ, एंगल AOB. ठीक है ना, समझ में आ गया? विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. एंड एंगल ATP, हाँ ये Q, अच्छा, करस्पॉन्डिंग एंगल. ओके, ये तो पता होना चाहिए आपको, इजंट इट? एंगल ATP इज इक्वल्स टू एंगल SPQ. एंगल SPQ इज अगेन इक्वल टू 90 डिग्री. क्यों 90 डिग्री होगा ये? क्योंकि अल्टरनेट एंगल. तो हो गया ना एक एंगल 90 इन द क्वाड्रिलेटरल, इन द पैरेललोग्राम. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, PQRS इज रेक्टेंगल. दैट्स इट. उड़ गया क्वेश्चन. देखो वंस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड. बहुत इंपॉर्टेंट है, HODS है, इंपॉर्टेंट है. 100%, सॉरी नॉट, वी कैन नॉट से 100%, ओके 90% चांसेस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. 90%. दैट टू कितने मार्क के लिए? 4 मार्क के लिए. तो नीड टू वर्क ऑन इट, इजंट इट? और ये क्वेश्चन एज इट इज आते हैं. देखो जो भी ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन है वो एज इट इज आ जाता है. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. है डिफिकल्ट लेकिन ईजी है, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन क्या आने वाला है, इजंट इट? तो प्रिपेयर तो कर सकते हैं. सबसे पहले हमने PQRS को पैरेललोग्राम बनाया बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, जो कॉमन क्वेश्चन है. ओके, हमने 2 बार एक्सरसाइज में ही किया हुआ है ये क्वेश्चन, पैरेलल लाइन इक्वल करके. एंड नाउ वी आर लेफ्ट विथ प्रूविंग इट इज रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री एक एंगल को प्रूव करेंगे. आई नो दैट 90 अगर आ गए तो रोम्बस में 90 क्या होता है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. व्हेन डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल बनेगा, 90 बनेगा. और ये एंगल किससे बनेगा, अल्टरनेट से 90 बनेगा, क्योंकि वो PS एंड BD क्या है, पैरेलल है. हो गया, दैट्स इट. अभी PS एंड BD पैरेलल क्यों है? मिड पॉइंट थ्योरम यार. P एंड S आर तो मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट थ्योरम से वो पैरेलल है. पैरेलल हो गया मतलब एंगल 90 तो क्लियरली हो गया. दैट्स इट, दैट्स इट. देखो कितना इजी है, सिंपल है, डायरेक्ट. आई होप यू आर क्लियर विद इट. सो दैट्स इट. अपना स्लाइड्स खत्म हो गए. लेकिन यस, वन मोर क्वेश्चन, लास्ट वन मैं प्रूव करता हूँ. इन क्वाड्रिलेटरल ये हमने नहीं किया था, हमने छोड़ दिया कंसिडरिंग कि हमने ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो जाने दो, प्रूव कर देते हैं. इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD प्रूव दैट ऑल एंगल्स सम, दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360. ये 2 प्रूव है. कंस्ट्रक्शन है जॉइन AC, याद आया? चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले नाम देते हैं इसको एंगल 1, इसको 2, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है, तो इन ट्रायंगल, याद रखो इस चीज़ को, इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC
एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, कुछ नहीं करना है यार, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 ऑल दैट इक्वल टू 360 डिग्री। ये तो पता चल गया आपको। तो एंगल 1 प्लस 6 क्या होगा? एंगल ए। एंगल 2 इज एंगल बी। एंगल 3 प्लस 4 इज एंगल सी एंड एंगल 5 इज एंगल डी एंड ऑल दैट इक्वल टू 360 डिग्री। हो गया, दैट्स इट। तो यहाँ पे आई डिक्लेयर दैट द quadrilateral टॉपिक इज डन। मेक श्योर दैट दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, यू ऑल आर इन विबग्योर, आई नो दैट। तो आपका जो मॉक पेपर हुआ है उसके बारे में जो भी हो फीडबैक, यू प्लीज़ गिव मी, कमेंट करो, ग्रुप में सेंड करो, मॉक पेपर सेंड करो, कैसा था, क्या है उसमें, एंड देन how are you going to how did you felt it, was that easy, was that difficult, out of the question, textbook question the, from textbook question the, whatever the feedback is, please do give it to me, so that what I can do is I can just work in a more better way। ठीक है, तो ऑफकोर्स हम लोग ऑनलाइन सेशन कल से शुरू ही कर रहे हैं, तो ऑनलाइन सेशन में आपको मैं पूछ ही लूँगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो।